ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। जो पेल्विस लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, दो पैर के बीच में वहाँ पेल्विक फ्लोर मसल्स है। उसकी मेन फंक्शन है हमारी ऑर्गन्स को इसके सिम्टम्स क्या है? क्या हमें पता चले कि हमारा पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, अगर आपको कुछ लाल रेडनेस दिखता है, अगर आपको कोई डिस्चार्ज दिखती है जो नॉर्मल कलर में नहीं है, और अगर आपको लगता है कि कुछ निकल के आ रही है बाहर, जब भी मैं खांसती हूँ या पुश करती हूँ अपनी कि चाहे वॉशरूम जाना उन्होंने को कंट्रोल नहीं हो रहा ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ये पेल्विक फ्लोर दिखता नहीं है बाहर से और इजीली एक्सेसिबल नहीं है। हम इसको मसाज या कुछ बाहर से नहीं कर सकते। जो भी ट्रीटमेंट देनी है हमें अंदर वजना के थ्रू करना। या वो औरतें जो कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है ना होना चाहती हैं, क्या उनके साथ भी ये समस्या हो सकती है? जब बच्चे 5 साल के होते हैं, अच्छा, तब से पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। ट्रकर्स ਈਵਨ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। अगर एक बार उन्होंने लर्न कर दिया, और ये बहुत सिंपल है, आई हैव सीन अराउंड अगर 100 पेशेंट में से 60% ऑफ देम उनको सिर्फ एक विजिट में उनका तो ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਔਮਨ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਮਨ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮੀਆ ਵਿਨੋਦ। ਤੇ ਰਾਮੀਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਔਮਨ ਹੈਲਥ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ। ਔਮਨ ਹੈਲਥ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ? ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਮੀਆ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਮੀਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। नमस्ते नामचंद जी। ਰਾਮੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ? सो आपने बहुत सही कहा कि फिजियोथेरेपी में बहुत कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक होता है, दिल के होता है, कार्डियो, रेस्पिरेटरी होता है, स्पोर्ट्स होता है। बट कई लोग को ये नहीं पता कि विमेंस हेल्थ के सेपरेट एक ब्रांच है। जैसे जैसे जब विमेन प्रेग्नेंट होते हैं उनके कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, और डिलीवरी के बाद कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, और ऑल्सो मेनोपॉज के टाइम पे जब पीरियड रुक जाती है उनको कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम को हम ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं कि ये सारे नॉर्मल है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी को बैक पेन होती है,
कोई भी नहीं बोलता कि वो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि ये 10 महीने से रहेंगे और इसके बाद आपको डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगा। बट वो जो अंडरगो करते हैं, वो जो पेन, वो हम कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी जो विमेन पे फोकस करती है, वो उस पे हेल्प करती है और उनको एजुकेट करती है कि उसको पेन क्यों हो रहा है। तो हमारी ट्रीटमेंट का मेन मकसद है कि विमेन को पहले समझाना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ये विमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी। एंड ऑल्सो आप जब देखोगे डिलीवरी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, बट हम विमेन क्या करते हैं, हम बच्चे पे ज्यादा फोकस करने शुरू कर देते हैं हमारे डिलीवरी के बाद। एंड हम अपने हेल्थ को बहुत कम मायने देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, लाइक फर्स्ट डिलीवरी के बाद जब आप सेकेंड बेबी प्रेग्नेंट होते हो, देन प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और सेकेंड थर्ड डिलीवरी अगर जिसके 3-4 बच्चे हैं, उनका तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years के बाद जितनी प्रॉब्लम उनको होती है, इट बिकम्स ज्यादा, दैट इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू मैनेज। और हमेशा जिनकी बैक पेन होती है डिलीवरी के बाद, ऐसे इजीली बोल देते हैं कि ये कॉमन है, अगर आपकी बेबी हुई तो ये कॉमन है। नहीं, आपको पेन झेलने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स कर सकते हैं और वो सिंपल भी है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਰਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮੀਆ ਜੀ, ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? ओके, पेल्विक फ्लोर वो जो मसल है जो हमारे हिप के नीचे है। जैसे हमारे वेजिना है, जहाँ से हम पीपी करते हैं, बेबी आती है, और जहाँ हम पूप करते हैं ना, सो वो सारी जो पेल्विस लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, 2 पैर के बीच में, वहाँ पेल्विक फ्लोर मसल्स है। उसकी मेन फंक्शन है हमारी ऑर्गन्स को पकड़ के रखना। अच्छा। जैसे हम शॉपिंग जाते हैं, शॉपिंग के बैग होता है, उसमें अगर हम 1 किलो आलू डालते हैं, वो आलू को वो बैग होल्ड कर सकता है ना। सो वैसे बैग जो नीचे वाला पार्ट है, तो वैसा है हमारा पेल्विक फ्लोर। सो वो हमारे ऑर्गन को होल्ड करना वन ऑफ द मेन फंक्शन है। सो जो टॉर्सो है हमारा, टॉर्सो का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम पेल्विक फ्लोर बोल देते हैं। यस, और वो बहुत अंदर है, वो बाहर से दिखता नहीं है। जैसे हमारे बम होता है, लेग्स मसल होती है, वो सारे इतने बड़े बड़े मसल्स हैं। ये पेल्विक फ्लोर दिखता नहीं है बाहर से और इजीली एक्सेसिबल नहीं है। हम इसको मसाज या कुछ बाहर से नहीं कर सकते। जो भी ट्रीटमेंट देनी है हमें अंदर वेजिना के थ्रू करनी पड़ती है। सो ये जब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने बोला, वो एक बैग में आप 1 किलो आलू डालते हो तो वो झेल सकता है, पर उसी बैग में आप 5 किलो आलू डालते हो तो वो बैग थोड़ा वीक होने लगता है और धीरे 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 फटने लगता है। सो सेम थिंग हैपन्स जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं या बेबी को पुश करके डिलीवरी करते हैं। ये जो बैग है जो होल्ड कर रहा है, वो झेल नहीं पाता है। तो हमेशा क्या होता है, लाइक अगर हमें ये नहीं पता कि इसको वापस फिक्स कैसे करें, स्ट्रॉन्ग कैसे करें हमारे डिलीवरी के बाद, बट बिना स्ट्रॉन्ग किए हम दूसरे प्रेगनेंसी पे चले जाते हैं, देन और वीक हो जाता है। जैसे कि 5 किलो आलू के बदले आपने 10 किलो डाल दिया। अभी जब आप बोल रहे हो कि ये वीक हो जाता है या डैमेज हो जाता है या उस तरह से होल्ड नहीं कर रहा जो भी वेट है हमारा अंदर, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या हमें पता चले कि हमारा पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन कर रहा है? यस, सो वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो जब पहले जब डिलीवरी के बाद क्या होता है, हमें वहाँ एक वीकनेस सा महसूस होने लगता है, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते। ओके, दूसरी चीज ये कि ये जो पेल्विक फ्लोर वीकनेस हमें ज्यादातर बैक पेन दे सकती है, क्योंकि वो जो मसल डायरेक्टली हमारे स्पाइन के पीछे, सेक्रम बोलते हैं उसको, सबसे नीचे, मेनी पीपल नो टेल बोन बोलते हैं, सिटिंग बोन बोलते हैं ना, जहाँ हम बैठते हैं बम पे। सो दैट मसल इज अटैच टू द टेल बोन। तो अगर पेल्विक फ्लोर मसल डिसफंक्शन हो गया तो टेल बोन भी थोड़ा हिलने लगता है। उसके बाद जब भी हम बैठते हैं उठते हैं, पेन होना शुरू कर देता है। पेन इज द फर्स्ट इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन है कि जब विमेन वॉशरूम जाने के लिए
जल्दी में होते हैं, उसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। इनकॉन्टिनेंस मतलब मैं अपने पीपी को रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे भाग भाग के वॉशरूम ढूंढना पड़ता है। मैं मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं होल्ड कर पाऊंगी, बट मैं जल्दी वॉशरूम के लिए भाग रही हूँ, दैट इज अ पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। वो नॉर्मल नहीं होता अगर आप वॉशरूम के लिए रश पे हो। तीसरी प्रॉब्लम है कि व्हेन यू कॉफ, स्नीज या अगर आप कुछ वेट उठाते हो, बेंड करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपकी पीपी थोड़ा लीक हो जाती है, आपकी अंडरवेयर वेट होने लगती है, वो भी नॉर्मल नहीं है। मोस्टली मैंने सुना है कि डॉक्टर्स या अपने ओन मदर या पेरेंट्स बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, मेरी भी बेबी के बाद ऐसे हुआ था। वो नॉर्मल नहीं है। जैसे हमारे प्लम्बिंग लाइन में लीक होता है, हम चुप बैठते हैं उसको देख के, नहीं ना, लीक तो लीक होता है। तो जैसे प्लम्बिंग को फिक्स करना पड़ता है, ये भी अंदर की प्लम्बिंग है जो वीक हो गया, उसको फिक्स करनी चाहिए। चौथा सिम्टम्स ये है कि उनको लगेगा कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द वेजिना। हमेशा उसको रोक के रखना पड़ता है कि यूजुअली पेशेंट टेल मी कि मुझे बॉल जैसा कुछ निकल के आ रहा है, मुझे हैवीनेस फील हो रहा है, पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्स के टाइम पे उनको इतना तकलीफ होती है और वो समझने लगते हैं कि ये नॉर्मल है, पेन इज नॉर्मल, और वो एंजॉयबल नहीं रहता उसके बाद। और विमेन ऑल्सो सोचते हैं कि वो नॉर्मल है, सेक्स तो पेन करेगा, बट नहीं, इट हैज टू बी कंफर्टेबल एंड प्लेजरेबल। सो ये सारे पेल्विक फ्लोर के डिस्फंक्शन, और जैसे पीपी नहीं रोक सकते, मेनी पीपल उनका पूप भी नहीं रोक पाते, वो भी उसमें भी जल्दी होते हैं। और आई नो समबडी हु लिटरली वो काम पे नहीं जा पाई बिकॉज उनकी फाट निकल जाती थी। तो पब्लिक में सबके सामने अगर फाट हो गया तो कितना एम्बेरस होता है ना। सो वो मसल वीकनेस की वजह से होता है, और वो उनकी सोशल लाइफ को इतना अफेक्ट कर दिया। बहुत सारी औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਓੜ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾइजेस ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ? सो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ब्रॉड है। ओके, प्रॉब्लम्स सिम्टम्स सिमिलर हो सकता है बट उसकी वजह अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सेम ब्लैडर जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, वो सिर्फ एक मसल का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरे बड़ा वाला नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है, नाड़ का। अगर नाड़ का है तो ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी क्योंकि वो बेसिक वायरिंग में ही प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट लेवल्स होती है। दैट्स व्हाई मैं इंसिस्ट करती हूँ कि जितना जल्दी आप इसको एड्रेस करोगे उतना हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिसको भी बेबी हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी जिसको भी प्रेगनेंसी या बेबी हुई है उसको एक बार चेक करना चाहिए कि उनको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अच्छा। सो अगर वो कर लेंगे तो बहुत साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब प्रॉब्लम उनको आ रही है तब नॉर्मल फिजियोथेरेपी में शायद वो फिक्स नहीं हो पाएगा, देन उसके लिए सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। एंड इवन मोस्ट ऑफ द विमेन उनको लगता है कि सर्जरी परमानेंट फिक्स है। अच्छा। और उनको लगता है कि सर्जरी किया तो मैं इसके बाद आई डोंट हैव टू वरी, मैं मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, पेल्विक फिजियो नहीं देखनी है। बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनकी 5 बार 7 बार सर्जरी हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने एक सिंपल स्टेप नहीं किया कि अपने बारे में समझना कि मेरे पहला क्यों ये प्रॉब्लम हुआ और उसको मैं कैसे रोक सकती हूँ। अगर एक बार उन्होंने लर्न कर दिया, और ये बहुत सिंपल है, आई हैव सीन अराउंड अगर 100 पेशेंट में से 60% ऑफ देम उनको सिर्फ एक विजिट में उनका फिक्स हो गया प्रॉब्लम।
एक विजिट में। अच्छा, मैं एक चीज और मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक तो वेजाइनल बर्थ है, दूसरा सी सेक्शन है। अब लेकिन अगर आप अपने तजर्बे से बता सकें कि क्या ये सारी समस्याएं वेजाइनल बर्थ वाले को ही आ रही हैं या फिर जो सी सेक्शंस हैं उनकी भी इस तरह की समस्याएं हैं या उनकी समस्याएं कुछ अलग से हैं? अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी आपने ये पूछा, क्योंकि ये सबके मन में डाउट है कि वो बोलते हैं कि मेरे तो सी सेक्शन हुआ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे हमारे वेजिना का मसल, पेल्विक फ्लोर है ना, नीचे वाली वो मसल, और हमारी जो पेट के मसल है और हमारे ब्रीदिंग के मसल है, सब कनेक्टेड है। चाहे वो दूर दूर ना हो एक से, बट सब कनेक्टेड है। सो इफ यू सी, जो भी मेरे पास आते हैं, यू वोंट बिलीव, अगर ये आपको भी ताज्जुब होगा कि ये क्या बोल रही है, जिनको भी ये पेल्विक फ्लोर की इश्यू है उनकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर ब्रीदिंग को फिक्स करेंगे कि आपको ऐसे ब्रीथ नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, उसी में उनका 50% ट्रीटमेंट हो गया। इतनी सिंपल सी बात है। फॉर सम रीजन डिलीवरी और प्रेगनेंसी के बाद वो ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। सो जैसे ब्रीदिंग मसल कनेक्टेड है, टमी भी कनेक्टेड है, पेल्विक फ्लोर भी कनेक्टेड है। सो जिनकी सर्जरी हुई टमी से उनको भी पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो सकती है, और जिनकी वैजिनल बर्थ हुई है उनकी भी हो सकती है। इट इज ऑलमोस्ट सेम। ऐसे नहीं कि ये ज्यादा बच गए और ये ज्यादा एडवांटेज में है। सो दोनों में प्रॉब्लम होता है इक्वली। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दे ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। दूसरी चीज़ ये भी है कि ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਕੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਮਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੈਲਵਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾमिन कर सकन? यस, सो अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो हमारी क्या होता है ना, जब हमें हम पालते हैं, लाइक दे ऑलवेज टेल कि ये जो प्राइवेट पार्ट है, जो हमारी वेजिना है, उसको छूना नहीं चाहिए, उसको देखना क्यों है, राइट? उसके बारे में बात करना, या वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो एक बहुत बड़ी गलत है इफ यू आर टचिंग योर ओन प्राइवेट पार्ट, राइट? तो ऐसे हम सुन के उस मोहल्ले में रह के हमें ये एक नफरत सी हो जाती है हमारी उस पार्ट से कि दैट इज अ वेरी बैड प्लेस। ओके, जब बच्चों को भी सिखाते हैं बैड टच बैड टच बैड टच, इतना बोल देते हैं कि उनको खुद लगता है कि अपने आप को टच करना भी बैड ही है। एग्जैक्टली। तो जब वो हो जाता है, देन आपको उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करने का फील ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब नहाते हैं, मिरर में देखते हैं, कितने लोगों को टाइम है कि नीचे देखना कि क्या है, राइट? इफ आई आस्क एनी वुमेन को पूछती हूँ कि आपने लास्ट अपने वेजिना को कब देखा है, तो बोलती है क्यों देखना है। अभी 30 साल की लड़की आई थी, उसको प्रॉब्लम है, बहुत पेन है। मैंने बोला आपने कभी मिरर में देखा है? वो बोलती है 30 साल में मैंने सोचा भी नहीं उसको देखने के लिए। ऐसे जब फेमिलियर नहीं होते कि नॉर्मली कैसे दिखता है, देन आप अब नॉर्मली कैसे दिखेगा वो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। इसमें आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जैसे हमारे तंब की रेखा होती है ना, लाइक तंब इम्प्रेशन रेखा, कि दुनिया में आपकी रेखा किसी और को नहीं हो सकती। अच्छा, राइट? दुनिया में करोड़ों लोगों में आपकी थंब की रेखा किसी और की नहीं हो सकती। सिमिलरली जैसे हमारी वजेना है, किसी और की नहीं हो सकती। अच्छा,
हर एक का डिफरेंट होता है। तो ये किसी ने आज तक आपको बोला नहीं होगा, राइट? सो हर विमेन को, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की सेल्फ एग्जाम करते हैं ना, मिरर के सामने हाथ उठा के देखना, पैल्पेट करके देखना कि इधर लंप है, हर 3 महीने विमेन को करना चाहिए टू सी इफ देयर इज एनी ब्रेस्ट कैंसर। सिमिलरली जैसे हम हर साल पैप टेस्ट को जाते हैं कैंसर डायग्नोस करने के लिए, हमें हर 3 महीने हर 4 महीने नीचे भी देखना चाहिए, मिरर में देखना चाहिए। आगे एक मिरर रख के, इफ यू वांट एक टॉर्च लाइट या कुछ रख के, ओपन करके यू हैव टू ऑब्जर्व कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको कुछ लाल रेडनेस दिखता है, अगर आपको कोई डिस्चार्ज दिखती है जो नॉर्मल कलर में नहीं है, और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ निकल के आ रही है बाहर, जब भी मैं खांसती हूँ या पुश करती हूँ, आप मिरर के सामने एक बार खांस के देखो या पुश करके देखना, जैसे आप बेबी को पुश करते हो नॉर्मल डिलीवरी में, जब पुश करते हो आपको ऐसा दिखेगा जैसे एक बॉल जैसा चीज बाहर आके अंदर चली जाती है जब आप रिलैक्स करते हो। तो ये नॉर्मल नहीं है। जब हम वेजाइना को ओपन करते हैं वो एम्प्टी दिखना चाहिए, उसमें कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको छोटी मोटी चीज ऐसे दिखने लगती है, दैट मीन्स आपकी प्रोलैप्स हो रही है। अच्छा। प्रोलैप्स मतलब हमारी जो ऑर्गन्स है, जिसे हर्निया बोलते हैं, हर्निया पेट से जब आती है उसको हर्निया बोलते हैं, जब नीचे से आते हैं उसको प्रोलैप्स बोलते हैं। सो ऐसे हम घर में पहले चेक कर सकते हैं कि हमारे, और ये सिम्टोमेटिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपकी प्रोलैप्स भी हो सकती है, बट आपको कोई सिम्टम्स भी होने, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोई सिम्टम्स फील हो, तभी फिक्स करने की जरूरत है। यस, बहुत बहुत पहले फिक्स करना है, क्योंकि एक जैसे एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो और वापस से वो नया नहीं बनने वाला है। एक बार हम बलून को ब्लो करते हैं, वापस वो बलून नया नहीं बनता है। सिमिलरली एक बार प्रोलैप्स हो चुका है, वो अंदर जाके नहीं बैठने वाला है। तो एक बार निकल गया सो निकल गया। बट फिजियोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, हम वो प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। अच्छा। और बाहर निकलने से रोक सकते हैं। और आई कैन ऑल्सो टेल यू कि नहीं ये बहुत निकल चुकी है, आपको डॉक्टर के पास जाके सर्जरी करवानी है। तो ये बताने के लिए कम से कम आपको आना चाहिए, ताकि आपको पता चले आप किस स्टेज में हो, राइट? जब गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर हमारी पैप स्मीयर करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता ये सब देख के आपको बोलने को, क्योंकि उनका मकसद है पैप स्मीयर का, पैप टेस्ट करना, राइट? तो उनका जस्ट फोकस रहता है कि मैं एक सैंपल ले लूं और आपको भेज दो। सो अगर प्रोलैप्स दिखता है, where there are many doctors who has also sent to me, being responsible, they have sent to me telling that कि ये पेशेंट कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, वो पैर ओपन भी नहीं कर रहे हैं टेस्ट के लिए। अच्छा। उनको बहुत पेन हो रहा है, वो अलाउ नहीं कर रहे, so that is also pelvic floor dysfunction। अच्छा। अगर आप कोई भी चीज अंदर जाने नहीं दे रहे हो, तो जैसे इंटरकोर्स में पेन हो, पैप टेस्ट में पेन हो, अगर आप टैम्पून अंदर लगा नहीं सकते क्योंकि पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, सो ऑल दीज आर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। ये सारे फिक्स हो सकती है अगर जल्दी आओगे तो। रामी जी, आपने बार बार इस चीज को मेंशन किया है कि डिलीवरी के वक्त ऐसा हो जाता है, या डिलीवरी के बाद ये चीज अगर आप महसूस करते हो, 1 बच्चे के बाद, 2 बच्चे के बाद, 3 बच्चे के बाद, आपकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये सारा प्रेगनेंसी के साथ ही जुड़ा हुआ है? जो लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, या लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, या वो औरतें जो कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है ना होना चाहती हैं, क्या उनके साथ भी ये समस्या हो सकती है? एवरीबडी, इफ अगर आप बिलीव करोगे, 5 साल से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब बच्चे 5 साल के होते हैं, अच्छा। तब से पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल थिंग, आज तक हमने ये नहीं सोचा होगा कि ये गलत है। अपने बच्चों को ये बोलना कि जाके पीपी करके आओ, इज अ वेरी बिग मिस्टेक। हमें बिकॉज हम उसको अपने ब्रेन से थिंक करने के लिए रोक रहे हैं, तो करने से रोक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ब्रेन और ब्लैडर कनेक्टेड है। जब हमारी ब्लैडर फिल हो जाती है पीपी से, वो स्ट्रेच होके हमारी ब्रेन को मैसेज भेजती है कि स्ट्रेच हो गई ब्लैडर, तुम्हें अभी पीपी करनी चाहिए। पर हम ऐसे ही नहीं करते ना, हम कंट्रोल करके वॉशरूम जाके बैठ के जब रिलैक्स करते हैं तो पीपी निकल के आती है। ये जो प्रोसेस है ना, ब्रेन और ब्लैडर की कनेक्शन, वो हम बीच में तोड़ रहे हैं।
हम बच्चों को बोल रहे हैं कि जाके पीपी करके आओ, क्योंकि हम मॉल के लिए निकल रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, तो अभी पीपी करके जाओ। बच्चे बोलते भी कि मुझे नहीं लग रहा है कि करना है। आपको पता है कि ना रास्ते में बच्चे आपको रोकेंगे या वहां जाके परेशान करेंगे, बट हम उसको फोर्स करते हैं। नहीं, हम सारी ही मदर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काम करते हैं कि घर से अगर बाहर निकलना है तो हम खुद भी जाते हैं और बच्चों को भी बोलते हैं कि भी हाँ, ताकि रास्ते में कोई परेशानी नहीं हो। तो दैट मीन्स वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहां से शुरू होता है आपकी पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम। दैट्स सरप्राइजिंग। यस, क्योंकि आपके बच्चों को खुद फील करना चाहिए कि मेरी ब्लैडर फिल हो गया, मुझे अभी पीपी करनी है, राइट। एंड ऑल्सो जैसे भूख, ऐसे नहीं कि 12 बजे खाना है, 3 बजे में चाय पीना ही है, 6 बजे मुझे डिनर करनी है। हमें वो जो ब्लैडर फुल होने तक इंतजार करना चाहिए। यस, हमें ऐसे नहीं एम्प्टी करना चाहिए जैसे कि यू नो बिकॉज आई हैव कुछ काम करना है बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एट दैट टाइम, तो मैं ऐसे करके जाऊंगी एम्प्टी। तो ये बॉटल नहीं है टू एम्प्टी इट, ये ब्लैडर है। ब्लैडर की एक सेंसेशन है, उसकी एक फंक्शन है, तो उसको हम डिस्टर्ब करेंगे तब से शुरू होता है प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो मेनी बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। बेड वेटिंग इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। ओके, सो उनकी फ्लूइड बैलेंस और उनकी ब्लैडर ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो बेड वेटिंग हो रहा है। और साइकोलॉजिकल रीजंस भी बहुत है बेड वेटिंग की। एंड सबसे अनदर मेजर प्रॉब्लम आई एम सीइंग इन किड्स and also in many old women, of course nowadays even middle women, is constipation. अच्छा, बच्चों को बहुत constipation होता है बिकॉज हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं उनके वाटर इनटेक में और उनके फूड इनटेक में। जो हमें इजी लगता है वो प्रिपेयर करके देते हैं, या बाहर की जंक बहुत खाते हैं, तो उनकी बैलेंस्ड फाइबर या पानी नहीं होता है, सो दे एंड अप हैविंग कॉन्स्टिपेशन। सो व्हाई कॉन्स्टिपेशन के बारे में पेल्विक फिजियो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारी स्टूल जो हार्ड हो जाती है, उसको हमें एलिमिनेट करने के लिए पेल्विक फ्लोर को पुश करना पड़ रहा है। तो जब पेल्विक फ्लोर को जोर देते हैं तो पेल्विक फ्लोर वीक बन जाती है। अच्छा। और बच्चों को और एक प्रॉब्लम है, अगर वो ऐसे ही हम उनको ट्रेन नहीं करते कि यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। जब आपको फील होता है कि पुप करना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है। कई बच्चे वीडियो गेम खेलते वक्त या कई बार खेलते वक्त अगर उनको वो फीलिंग आती है वो तो रोक लेते हैं, तो इमीडिएटली आके उसको पुप नहीं करते। तो क्या हो जाता है, जितना ज्यादा देर पुप अंदर रहती है उतना हार्ड हो जाती है। जब वो हार्ड हो जाती है, हमारी रेक्टम जो है जहाँ पुप स्टोर होती है ना, लाइक इंटेस्टाइन में, वो बिग होना शुरू कर देता है। अच्छा। अगर वो एक्सपैंड हो जाता है तो प्रॉपरली वो पुश करके वो बाहर निकाल नहीं पाता है उस पुप को। तो ये बहुत बड़ी समस्या का चक्कर बन जाती है। कॉन्स्टिपेशन होता है, पेन होता है और वहाँ ब्लीडिंग शुरू होती है। कभी किसी बच्चे को अगर एक बार पेन और ब्लीडिंग हो गया, देन वापस वो पूप करने के लिए डरते हैं। तो ये सारी समस्या भी मैं पीडियाट्रिक पेल्विक फ्लोर में कर रही हूँ अभी कोर्स, तो वो भी खत्म हो जाएगा। देन मैं पीडियाट्रिक बच्चों को भी देख सकती हूँ जिनकी ये प्रॉब्लम है, पेल्विक फ्लोर की इशू, बेड वेटिंग और कॉन्स्टिपेशन की। बड़ी सरप्राइजिंग गल है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? बहुत है। अनदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो जो बहुत कम बात करते हैं हम, इज अबाउट इंटरकोर्स, राइट। इंटरकोर्स के बारे में हमें इतनी फालतू इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में मिलती है कि वो हमें एक्चुअली मिसगाइड करती है, राइट। अगर एक टीनेजर है या और एक लड़की जो शादी के एज पे है, वो किसी से बात नहीं कर पाती कि इंटरकोर्स क्या होती है, उसमें कैसे हम शुरू करते हैं, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है। माँ से नहीं पूछती है, माँ नहीं बोलती है, डॉक्टर से पूछ नहीं सकती है, फ्रेंड से बात करेंगे तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी क्योंकि वो उनके हिसाब से परसेप्शन से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो मेडिकल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरकोर्स की अभी शुरू करते वक्त क्या एक्सपेक्टेड है, दिस nobody is telling a woman. तो I am seeing so many young couples coming to me, जिनको ये प्रॉब्लम है कि बोलते हैं कि मुझे पेन हो रहा है, ये मुझे अंदर जाने नहीं देती है,
एंड ऐसे घस के पकड़ लेती है। और हमें शादी के 2 साल हो गए, हमने एक बार भी इंटरकोर्स नहीं किया। और मैंने ऐसे आई फील सो बैड इन टेलिंग कि मैंने बहुत ब्रोकन मैरिजेस देखे हैं। अच्छा। जैसे 3-4 साल सेक्स नहीं कर पाते और वो मैरिज टूट जाती है बिकॉज देयर इज नो फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप। क्योंकि उसमें गलत ये नहीं कि यू नो इट्स नॉट समथिंग बैड। ऑफ कोर्स मेन आल्सो वांट इंटरकोर्स, दे कैन नॉट compromise on that, right? So it is not wrong on their part to expect having intercourse. हम ऐसे सोचते हैं कि intercourse ही एक bad चीज है। It's such a pleasant and blissful experience, and हमें लगता है कि even pain होता है, discomfort होती है, और for the sake of ऐसे because my partner wants to have, मुझे करना ही पड़ता है, तो ऐसे हम सोचने लगते हैं, तो उसमें pleasure factor नहीं होती है। And again one more interesting fact, you won't believe me, इट्स लाइक जिन बच्चों को इन चाइल्ड अब्यूज हुआ है उनकी इम्पैक्ट 40-50 साल तक रहती है। That's true. Yes, and also even forced sex, अगर किसी का रेप हुआ और किसी के हस्बैंड ने फोर्स कर दिया उनको सेक्स करने में, That's right. या इवन अ सिंपल पैप टेस्ट। ओके, एक बार पैप टेस्ट के लिए जाते हैं और डॉक्टर जब स्पेक्यूलम अंदर डालते वक्त उनको पेन हो गया, तो एनीथिंग यू पुट इनसाइड उनको पेन हो जाएगा। तो वो जब मैं हमेशा मेरे पेशेंट को बोलती हूँ, जैसे हमारे ब्रेन में फंक्शन है ना, जैसे मेमोरी होती है ब्रेन में, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, एवरीथिंग इज आल्सो देयर फॉर द पेल्विक। सेंसिटिव है हर चीज के लिए। हर चीज मेमोरी रखती है। पेल्विक फ्लोर मेमोरी रखती है, पेल्विक फ्लोर एंजाइटी दिखाती है, अच्छा। पेल्विक फ्लोर प्लेजर देती है। सो इट डज एवरीथिंग व्हाट योर ब्रेन वांट्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन एट द एज ऑफ टीनेज से लेके प्री मैरिज एज तक, दे शुड बी एजुकेटेड मेनी बेसिक्स थिंग। जो बेसिक थिंग हमें खुद नहीं पता, वो हम क्या देंगे अगले जनरेशन के लिए ना। तो प्रिवेंशन के लिए और क्या किया जा सकता है कि ये डिसफंक्शन ना हो कुछ? चलो ये चीजें आपने चलिए बता दी हैं कि एजुकेशन की जरूरत है। स्टिल हमें ये पता ही नहीं है कि हमने शुरुआत कहाँ से करनी है कि इस सिचुएशन में हम आए ना, हमारा पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन नहीं हो। सो एज आई सेड, शुरुआत तो बच्चे से करना है, जहां हम बोलते हैं उनकी ब्लैडर बबल फंक्शन नॉर्मल रखनी चाहिए। उनको खुद डिसाइड करना चाहिए कि मैं कब पीपी करूंगा और कब पूप करूंगा। इट इज ऑल्सो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट गर्ल्स हियर, ओके। एंड तो बच्चों को ऐसे प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए। उनकी एपिटाइट, जब भूख लगेगा खा लेना, भूख नहीं है तो मत खाना कुछ भी। सो इट इज ऑल दीज हैबिट्स वेयर हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को वो ट्रिगर करती है, लाइक इट इज नॉर्मल। सेकेंड थिंग इज, एनी गर्ल व्हेन शी इज क्लोज, आई मीन प्यूबर्टी के क्लोज है, उस टाइम पे आपको पहले ही जानकारी देना चाहिए कि पीरियड्स क्या होती है, ब्लीडिंग कब शुरू होती है, कैसे होती है। एंड हर 10 साल के बच्चे से लेके आपको पैड उनके बैग में रखना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ये पैड की फंक्शन क्या है और उसको कैसे रखा जाएगा। स्कूल में हो जाएगा तो पैनिक मत करना। यस, स्कूल में हो जाएगा तो यू डोंट गेट स्कैर्ड, जस्ट ये पैड रख लेना और मम्मी से आके बोल देना। सो यू जस्ट गिव देम अ गुड पॉजिटिव मैसेज। एंड जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हो ना, घर में नेगेटिव बात मत करो कि पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, मैं ये 4 दिन ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, मेरा मूड स्विंग होता है। तो ये आप इंट्रोडक्शन आपकी बच्ची को देगी तो आप बच्ची वैसे ही पल जाएगी, लाइक शी विल हैव द सेम इंटेंशन अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल कि वो 4 दिन मेरे लिए टफ है। तो वो इंट्रोडक्शन मत देना कि अच्छा। वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, उसके बारे में अच्छे बोलना। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, हर वुमेन को होता है, दिस इज कंफर्टेबल। ये नहीं कि यू कैन नॉट डू दिस। हम माउंटेन क्लाइंब भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। उसको स्केरी नहीं बनाना। यस, एंड नेक्स्ट बात इज लाइक यू टेल देम बेसिक स्टफ, हाउ टू टेक केयर ऑफ द वजीना। ये शेव करना, जैसे टीवी पे देखते हैं बिकिनी शेव, लाइक परफेक्ट बिकिनी लाइन, लाइक यू डोंट हैव टू शेव योर वजीना बिकॉज वो हेयर वहाँ एक पर्पस से है। जैसे हमारे नाक के अंदर हेयर है, वाई बिकॉज हमारी नाक में जो एयर जाती है वो हमारी नाक को ड्राई कर देती है। इफ यू हैव अ ड्राई नोज, डू यू लाइक इट? वी नीड द मॉइस्चर इनसाइड। एंड ऑल्सो जब डर्ट अंदर जाती है, इट फिल्टर्स द डर्ट। सो जैसे नाक में हेयर है, वैसे वजीना में हेयर एक पर्पस के लिए है, to maintain the moisture and to prevent bacterial or fungus infection to enter your vagina.
सो शेव करना मना करना है। और ऑल्सो वी डोंट हैव टू वॉश द वेजिना वेरी हार्ड। वेजिना के अंदर गर्म पानी या सोप डालोगे तो जिंदगी भर सफर करोगे। So never wash with soap or with hot water inside the vagina. You just have to clean outside. ਰਾਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਆਏ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਰਸ ਈਵਨ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। Yes. So जैसे मैं पहले बोल रही थी, आप अपनी ब्लैडर को इमीडिएटली एम्प्टी नहीं करना चाहिए जब वो फुल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। सो एग्जैक्टली ऑपोजिट वो भी प्रॉब्लम है। जैसे आप ओवर होल्ड करते हो तो क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला ब्लैडर एक इलास्टिक बैग होता है। ब्लैडर इज लाइक अ इलास्टिक बैग। वो जितना आप होल्ड करते हो उतना स्ट्रेच होता जाएगा। अच्छा। सो अनदर फैक्ट इज विमेन के ब्लैडर से ज्यादा मेन के ब्लैडर बड़े होते हैं और वो ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेन के यूट्रस नहीं है, विमेन के यूट्रस है। बिग यूट्रस टेक्स स्पेस, हमारे पेल्विस में यूट्रस एक स्पेस ले जाती है, इसकी वजह से हमारी ब्लैडर स्मॉल है। बट मेन की ब्लैडर विमेन से ज्यादा होल्ड कर सकती है। अच्छा। बट इसका ये मतलब नहीं आप 8 घंटे 10 घंटे होल्ड करो। जितना ज्यादा होल्ड करते हो 2 प्रॉब्लम हो सकती है। एक इज इन्फेक्शन। जितना ज्यादा पीपी हम होल्ड करते हैं वो इन्फेक्शन में छोड़ जाती है, और वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है कि ओवर स्ट्रेच्ड ब्लैडर बोलते हैं। सो जैसे हम एक बलून में पानी भरते जाते हैं, बलून क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, बहुत स्ट्रेच हो जाता है। सिमिलरली ब्लैडर जब ओवर स्ट्रेच हो जाती है, उनको पीपी शुरू करने में प्रॉब्लम होगा। उनका लीक प्रॉब्लम नहीं होगा, बट उनको शुरू करने में ही प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज ऑल्सो डेंजरस, ओवर स्ट्रेच ब्लैडर। सो इट इज एडवाइजेबल टू एटलीस्ट पी एवरी 4 to 5 hours for men at least, but women at least 2.5 hours she can hold, not more than that or not less than that. So the cutoff is 2 to 2.5 hours, but men you can hold longer than women. अच्छा। Yes. ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਮਨ ਹੈਲਥ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਮੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੋ। Yes, so that's again a good question, क्योंकि हर फिजियोथेरेपिस्ट पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता है। अच्छा। और यहाँ कनाडा के रूल्स ऐसे हैं कि अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप बच्चों से या किसी लेडी से, अगर एक मेल फिजियोथेरेपिस्ट है, किसी लेडी से बिना कंसेंट लिए आप इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। अच्छा। टोरंटो में एक केस हुआ है, जब एक छोटी बच्ची ने वॉशरूम जाने की जल्दी में उसने गिर के उसका फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। बट वो फिजियोथेरेपिस्ट ने उस चीज के बारे में बात किया और पूछा कि तुम्हें पीपी जाने की जल्दी क्यों थी, अच्छा, तुम रोक नहीं पा रहे हो। तो उस मदर ने उस फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर केस डाल दिया कि मेरी बेटी के साथ ये बदतमीजी कर रहा था ऐसे बात करके, और वो कंफर्टेबल नहीं थे। सो द क्वेश्चन इज वेरी जेन्युइन। यस, हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिस बारे में बात नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते। बट ये जो पेल्विक फिजियो होते हैं, हम इसमें ट्रेंड है और सर्टिफाइड है। अच्छा। मेरे पास 4-5 उससे अलग से उसके लिए सर्टिफिकेशन है। Yes. जो पेल्विक फिजियोथेरेपी है वो हर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो नहीं कर सकता। यस, राइट। कनाडा में नहीं कर सकते। कनाडा में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की जरूरत है, विच यू आर। यस, मेरे पास 5-6 सर्टिफिकेट है वैसे। अच्छा। डिफरेंट स्पेशलिटी में, मतलब ईच स्पेशलाइजेशन। जैसे भी आपने बताया कि बच्चों की सर्टिफिकेशन आप ले रहे हैं। हाँ, तो अगर इफ आई ट्रीट अ किड विदाउट कंप्लीटिंग, ये बच्चे का जो सर्टिफिकेट मैंने कंप्लीट नहीं किया, if I talk to a child that आपके That's a violation. Yes, that's a violation. So अगर any regular physiotherapy को we also have a regulation board, right? So उसमें ethics होती है
कि we have to get the consent before touching a patient. We अच्छा. have to ask, can I pull your pant down? Can I lift this up? Can I open your bra? ये सारा पूछना पड़ता है हर स्टेप पे. हर स्टेप पे. Yes. So that's a part of the training. You have to ask कि कहाँ तक वो पेशेंट आपका कंफर्टेबल है, और जो pelvic floor फिजियोथेरेपिस्ट है उसको हर स्टेज पे हर स्टेप से पूछना पड़ेगा, और वहाँ जाके अगर कोई पेशेंट बोलता है कि नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, यू कैन नॉट डू दिस टू मी, देन यू हैव टू स्टॉप. यस. सो ये मैं शुरू करने के पहले जैसे रिटर्न यू कैन नॉट जस्टिफाई उसके बाद कि नहीं मैं इसलिए कर रही थी या इसलिए कर रहा था. यस. सो इसके पहले बिफोर पेशेंट कम्स इटसेल्फ हम एक रिटर्न कंसेंट वैसे भी ले लेते हैं ना कि ये टेस्ट में ये होता है, ये एक्सपीरियंस कर सकते हो. किसी को ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को पेन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है. ऑल दीज आर जैसे सर्जरी के पहले डॉक्टर लिखवा के लेते हैं कि अगर सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ कि यू कैन नॉट ब्लेम द डॉक्टर. सो जैसे कंसेंट में तो वैसे साइन कर लेते हैं, बट पेल्विक फिजियो में मैं और एक स्टेप जाके आई विल एक्सप्लेन द पेशेंट वर्बली ऑल्सो. अच्छा. कि टेस्ट कैसे होने वाली है और इसमें मैं क्या देखने वाली हूँ, और जैसे मैं करती हूँ उनके साथ मैं बात करती हूँ कि मैं ये देख रही हूँ और ये कर रही हूँ और मैं अभी फिंगर डालने वाली हूँ, और मैं कभी पेशेंट को फोर्स नहीं करती कि मुझे अभी फिंगर घुसा के टेस्ट करनी ही है. अच्छा. तो मैं उनसे पूछती हूँ. कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी जो बेशक वो सर्टिफाइड है, लेकिन आप ये तो कर ही नहीं सकते. यस. यू कैन नॉट फोर्स. जब तक किसी की कंसेंट नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट. यस. सो मेरे कई पेशेंट आते हैं जिनको प्रॉब्लम ही पेन है और जिनको प्रॉब्लम ही ये है कि कुछ अंदर डाल नहीं पा रहे, तो सीधा जाके मैं अपने फिंगर से टेस्ट नहीं कर सकती. आई हैव टू गेट देयर कंसेंट, दे हैव टू गेट कंफर्टेबल, दे हैव टू ट्रस्ट कि पेन नहीं होने वाला है, एंड फाइनली इवन इफ दे से नो, आई हैव टू जस्ट स्टॉप राइट देयर. Right. So, but every time it doesn't have to be internal all the time. It could be external as well. Is that right? Depending. अगर pregnant maybe women वो होती fix है, किया जा सकता हो. Why many women ask me कि is it possible to fix without doing a vaginal exam? It is possible, but 100% नहीं हो सकता. अच्छा. क्योंकि only if I examine with my finger, I would be able to tell कि आर दे अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग. वो जो स्क्वीज कर रहे हैं मसल्स को, वो ठीक कर रहे कि नहीं. ओके. सो स्क्वीज करना मतलब सिर्फ स्क्वीज करना नहीं होता, वो डायरेक्शन ऑफ स्क्वीज भी होता है कि किस तरह आप स्क्वीज करते हो. अच्छा. जैसे टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हैं, वो ऊपर से नीचे स्क्वीज करते हैं, और जैसे लाइक दिस pelvic floor has to be squeezed from outside to inside. तो मैं वर्बली कैसे बोल सकती हूँ उनको. सो अगर मेरे फिंगर अंदर है, आई कैन से नहीं आप ठीक से नहीं स्क्वीज कर रहे हो, आपको मेरी फिंगर अंदर की तरफ खींचना चाहिए. सो दैट कैन बी डन ओनली विद द palpation. बट इफ यू से प्रेग्नेंट विमेन, अगर वो लेबर के बहुत पास में है, 37 वीक्स या 36 वीक्स में है, देन आई विल अवॉइड ड्यूरिंग डूइंग इंटरनल एग्जाम, क्योंकि मैं लेबर ट्रिगर नहीं करना चाहती वहाँ डिलीवरी. एक मेरे मन में सवाल आ रहा है आपके लिए, जो अभी मैंने होल्ड किया हुआ था. क्या ये जो विमेन स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी की आप बात कर रहे हो, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की आप जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, या उसको हेल्प करते हो आप पेशेंट्स को, क्या ये ज्यादातर विमेन ही है इस प्रोफेशन में? Mostly women have, but just adding the information, my husband is also a pelvic floor physiotherapist. अच्छा. वो भी pelvic floor trained है, certified है. वो women भी देखते थे, but now he is also seeing men. Now if you ask me, ये women के ही problem है या men को भी pelvic floor function problem होता है? बहुत होता है. But कम से कम women तो finally आ ही जाते हैं, but men बहुत हेसिटेट करते हैं ये आने के लिए. बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट अ मेल कॉलर. अच्छा लगा कि पीपल आर ओपन एंड दे वांट टू डिस्कस. बट मेन की प्रॉब्लम ये है कि मेन को भी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है. अच्छा. मेन भी लीक होते हैं. हमने वो तो पार्ट अभी टच किया ही नहीं. कोशिश करेंगे कि इस हिस्से में थोड़ी उसके बारे में बात कर सकें, लेकिन पहले ये वेमेन वाला पार्ट अगर हम कंप्लीट कर सकें. तो ये जो पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी है, इसमें आपने बताया कि क्या क्या चीजें फिक्स की जा सकती हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिनको लगता है कि इस तरह की फिजियोथेरेपी के जरिए फिक्स नहीं किया जा सकता?
Okay. There are many conditions where a pelvic floor physiotherapist cannot treat as infertility number 1. अगर अच्छा। जिनकी बेबी ना हो रही है और जिनके प्रेग्नेंट होने में तकलीफ है, so जिसके सेक्स करने में तकलीफ है, I can help little bit. अच्छा। But जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, I cannot help. Okay, that is infertility issue. वो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, डॉक्टर को देखना पड़ेगा. अगेन जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की इश्यू होती है, कई फोन करके पूछते हैं कि मेरे इरेगुलर पीरियड्स हैं और कैन यू फिक्स मी, तो वो भी पेल्विक फिजियो नहीं कर सकते. वो भी हमारे हार्मोनल का इशू है, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर की इशू है, दैट इट हैज टू बी डेल्ट विद अ गायनेकोलॉजिस्ट. एंड कई लेडीज बोलते हैं कि या मुझे भी लीक हो रहा है, बट व्हेन यू एग्जामिन वो लीक यूरिन की नहीं होती है, उनकी वैजिनल डिस्चार्ज जो होती है. सो वैजिनल डिस्चार्ज कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय अ पेल्विक फिजियो. अच्छा। वो समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन इन योर यूट्रस, सो यू हैव टू टॉक टू अ गायनेकोलॉजिस्ट. सो ये सारे लिमिटेशंस होते हैं जो हम ट्रीट नहीं कर सकते. अच्छा, एक और अब चीज, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं. इसी तरह से जब हम मेनोपॉज में एंटर कर जाते हैं या ड्यूरिंग द मेनोपॉज, उसमें भी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आ रही हैं. लेकिन अब ये जो चीज़ें आप बता रहे हो कि वॉशरूम जाने में परेशानी है, होल्ड नहीं किया जाता, या लीकेज शुरू हो गई है, या पेन शुरू हो गई है, ये किसी भी स्टेज पे हो सकती है. एक सवाल है कि अब कौन डिसाइड करेगा कि आपको पेल्विक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होगा? क्या हमारा फैमिली डॉक्टर है, या जब तक हमें गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बोलता, या ये हम अपना जो शक है उसको दूर करने के लिए भी जा सकते हैं? यस, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपकी बेबी हुई हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे पेल्विक फ्लोर चाहिए कि नहीं. आप सीधा आ सकते हो अच्छा। पेल्विक फ्लोर फिजियो, बिकॉज एक बार आप प्रेग्नेंट और डिलीवरी हो चुकी है, देन देयर इज हाई चांसेस कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है. अच्छा. तो जैसे कोई मोस्ट ऑफ द लेडीज क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद गूगल करते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, और ये शब्द बहुत कॉमन है, कीगल्स एक्सरसाइज. हाँ. कीगल्स एक्सरसाइज जो होता है, उस मसल को स्क्वीज करना, रिलैक्स करना. और विमेन क्या सोचती है कि हर किसी को कीगल्स एक्सरसाइज करना पड़ेगा. सो वो डिलीवरी के बाद अपने आप से स्क्वीज करना, रिलैक्स करना शुरू कर देती हैं. मोस्ट ऑफ द विमेन डोंट इवन नो कि वो कौन से मसल स्क्वीज करते हैं. दूसरे, नॉट एवरीबडी नीड्स कीगल्स. अच्छा, ऐसा भी नहीं है? नहीं. आई हैड अ पेशेंट लास्ट वीक जिनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मसल थी, और उन्होंने कीगल्स करके उसको ज्यादा बैड बना दिया. अच्छा. कि अभी उनको बहुत पेन हो रहा है. सो उनको अभी कीगल्स की जरूरत नहीं है, उनको अभी रिलैक्सेशन की जरूरत है. उस मसल को कम काम करवाना है. सो वो भी हमारी एक स्पेशलिटी होती है. तो ये वैसे मैं सच्ची बात बताऊं, मेरा भी अपना यही इम्प्रेशन था कि कीगल एक्सरसाइज शायद विमेन, हर एक औरत के लिए अच्छी ही होती है. और ये बिल्कुल जैसे हम कोई और एक्सरसाइजेस करते हैं, कीगल एक्सरसाइजेस भी शायद हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए. That is not true. That is not true. But again there is one more important information. Thanks for mentioning the word exercise. मुझे strike हो गया. So please don't immediately start exercising after delivery without consulting a pelvic physio, because अगर आप कुछ एब्डोमेन क्रंचेस करते हो या जिम में जाके वेट उठाते हो, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी मसल फटी हुई है यहाँ एब्डोमेन की प्रेगनेंसी की वजह से, और ऑल्सो अगर आपकी पेल्विक फ्लोर वीक हो चुकी है, ये एक्सरसाइज आपको हेल्प कम करेगी, डैमेज ज्यादा करेगी. So when you go lift weight in the gym, or when you do any crunches or abdominal exercise, विदाउट लर्निंग कैसे इसको स्क्वीज करना है, कोर मसल कहाँ है, पेल्विक फ्लोर क्या होती है, अगर ये इसके बारे में आप जानते नहीं हो, प्लीज अपने आप को हेल्प करो बाय नॉट एक्सरसाइजिंग. अच्छा. अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको प्रोलैप्स ज्यादा हो जाएगी, ये टेयर ज्यादा हो जाएगी, और हर्निया भी ज्यादा हो जाएगी. सो फर्स्ट मेक श्योर कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग टू योर बॉडी. ऐसे नहीं कि सडनली मैंने डिसाइड कर दिया कि जिम जाना है, आज मैं वेट उठाऊंगी. सो विमेन, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. दैट्स यू आर स्पॉइलिंग योर ओन हेल्थ.
नॉर्मली ये होता है कि हम सोचते हैं कि 3 महीने के बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, और डॉक्टर से जब बात करती है तो फैमिली डॉक्टर बोलता है कि अगर आप ठीक फील करते हो देन यू कैन डू दैट। लेकिन आपकी ये सजेशन है कि एक्सरसाइज करने से पहले एक बार पेल्विक जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके साथ ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। मे बी सब कुछ ठीक ठाक है, मे बी नहीं भी है, और किसी खास तरह की आपको एक्सरसाइजेस की ज़रूरत हो सकती है। ऑल्सो कई जिम ट्रेनर्स को जानते हैं, जिम ट्रेनर्स को पता है कि कोर को टक इन करनी चाहिए, वो बोलते हैं कि टक इन योर कोर, टक इन योर कोर, बट हाउ डू यू नो कि तुम्हारी कोर कहाँ है? आर यू टकिंग इट प्रॉपरली? क्योंकि वो जिम ट्रेनर टच करके फील करके तो नहीं बता सकता, बट अ पेल्विक फिजियो कैन टेल यू दिस इज द कोर मसल, यस यू आर टकिंग इट इन, और नो यू आर नॉट टकिंग इट इन। तो इसको ऐसे करने से वो टक इन होता है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एक बार लर्न करोगे देन दैट्स इनफ। नहीं, हम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि पर्सनल ट्रेनर ले लेना है। पर्सनल ट्रेनर नॉर्मली हमारा लेने का ये है कि एक तो हमारी हेल्थ अच्छी रहे, दूसरा ये है कि हम स्लिम ट्रिम रहने की इच्छा में उनके पास जा रहे हैं, है ना। लेकिन शायद पर्सनल ट्रेनर, शायद बोल रही हूँ मैं, इतनी डिटेल में ये नहीं जानता कि हमारी एक औरत की, स्पेसिफिक औरत की बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि सबके साथ भी सेम नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़, और जो आप फिजियोथेरेपी की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये तो पेल्विक फिजियोथेरेपी स्पेसिफिकली आप मेंशन कर रहे हो, हमें कई बार ये होता है कि मसाज के लिए जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, एक बार, 2 बार, 4 बार मसाज के लिए गए लेकिन ठीक महसूस नहीं किया, फिर हम छोड़ देते हैं। आपकी प्रैक्टिस में या नॉर्मली क्या होता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो इस चीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, या वो अपने लेवल पे नॉर्मली दे आर जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट टू हेल्प यू? सो एज यू सेड, या हर किसी कंडीशन का स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट है हु आर उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। जैसे एक हैंड के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, वैसे हम भी हैंड देख सकते हैं। मैं अगर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं हैंड देख सकती हूँ, बट अगर कोई इसमें 2 साल स्पेशलाइजेशन किए हो तो इट इज बेटर टू सी अ हैंड थेरेपिस्ट rather than seeing a नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट। सो जैसे मैं बोल रही हूँ, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट को भी ये पता है कि लो बैक पेन के लिए क्या करना है, ठीक है, बट मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन किया है तो मे बी आई कैन हेल्प मोर। आपको ये चीज लगती है कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे, लेकिन वो इश्यूज इसके साथ, पेल्विक फ्लोर के साथ जुड़े हुए होते हैं, और हम निराश इस चीज से हो रहे हैं कि हम मसाज के लिए भी जा रहे हैं, हम पर्सनल ट्रेनर के पास जा रहे हैं, हम जिम भी जा रहे हैं, हम योगा भी कर रहे हैं, बहुत बार ये चीज भी होती है, लेकिन ये चीज फिक्स नहीं हो रही। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रामे जी, औरतां बारे बहुत सारी ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ओके, सो जैसे मैं बोल रही थी, विमेन की पेल्विक फ्लोर इश्यू हो सकती है, मेन के भी सिमिलर हो सकती है। मतलब मेन लोगों को भी पीपी होल्ड करना डिफिकल्ट हो सकता है, और वो भी वॉशरूम के लिए रश करते हैं। आई हैव आल्सो नोन मेनी मेन जो डायपर्स यूज करते हैं, अच्छा। जो जिनकी लीक भी हो जाती है, और मेनी ओल्ड मेन जिनकी प्रोस्टेट का सर्जरी होती है, प्रोस्टेट कैंसर होती है, या एनी काइंड ऑफ हर्निया होती है प्रोस्टेट में। एंड जो मेन वेट लिफ्टिंग बहुत करते हैं जिम में, उनको भी पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो सकती है, हर्निया की इश्यू, और ऑल्सो पेल्विक फ्लोर टाइट हो सकती है। एंड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द इरेक्टल डिसफंक्शन। अच्छा। जैसे उनके इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होता है, जैसे उनकी इरेक्शन नहीं होती है, वो भी पेल्विक फ्लोर इश्यू होती है। अच्छा। और इवन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज उनकी स्पर्म बहुत जल्दी निकल जाती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तो वो उनको मेंटली वो बहुत अपसेट हो जाते हैं उसके बारे में। एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी पेल्विक फ्लोर वन ऑफ द इशू है, इट कैन बी फिक्स्ड। एंड ये मैं नहीं करती, मैं ट्रेंड हूँ, बट मैं मेल पेशेंट नहीं देख रही हूँ।
बट मेरे हस्बैंड जो है वो भी पेल्विक फ्लोर फिजियो में ट्रेंड है, वो मेल पेशेंट देखते हैं। अभी उनको भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं जो प्रोस्टेटिस की वजह से पेन हो रहा है या उनको बीपीपी रोकने में डिफिकल्टी हो रही है, और इरेक्टल डिस्फंक्शन के लिए और काफ़ी हेल्प है अपार्ट फ्रॉम पेल्विक फिजियो। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ हेल्प कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज टू ट्रीट मेल पेल्विक फिजियो आल्सो। हमारी बहुत सी बातें हो चुकी हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं ना पूछ पाई हूँ आपसे, और आप सोचते हैं कि इस तरह की समस्या चाहे कोई मेल्स हैं या फीमेल्स हैं जो महसूस कर रही हैं, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और जो मैं ना पूछ पाई। इन जनरल लेकिन हमें ऐसे सेट कि हमारे प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करना ही सबसे बड़ी टैबू है, सबसे बड़ी झिझक सी हो रही है ना कि मैं इसके बारे में किसको जाके पूछूं, राइट? सो आई वांट एवरीबॉडी टू फील कंफर्टेबल डिस्कसिंग दिस टू द डॉक्टर के पास। या हर चीज गूगल में नहीं मिलती है, सो डोंट ट्रस्ट कंप्लीटली इंटरनेट को, बट आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको शेयर करें किसी के साथ, क्योंकि डेफिनेटली जिन जो प्रोफेशनल नहीं है उनसे शेयर करने से आपको कुछ नहीं हो रहा है, ये आपकी प्राइवेट इशू है। आप यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर इंटरकोर्स लाइफ टू योर फ्रेंड, राइट, ताकि वो आपके बारे में जज करें। सो फील फ्री टू टॉक अबाउट दिस इशू टू एनीबॉडी हु इज प्रोफेशनल एंड गेट हेल्प एट द राइट टाइम। आपकी शाइनेस जो है वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में जाके आपको छोड़ सकती है, जैसे आपकी सर्जरी को जरूरत हो, या इवन यू नो कभी कभी हम ऐसे स्मॉल स्टमक पेन को भी हम पोस्टपोन करते हैं कि खुद बोलते हैं कि ये गैस हो सकता है। नो, चेस्ट पेन को हम सोचते हैं कि गैस हो सकता है। लाइक आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, कॉन्स्टिपेशन कैन किल यू। कॉन्स्टिपेशन की वजह से हम मर सकते हैं। हमको लगता है कॉन्स्टिपेशन इज जस्ट पू करने वाली, इसमें क्या बात है, राइट? अगर बंदा कोई कॉन्स्टिपेटेड है, वो वॉशरूम में बैठ के पुश कर रहा हो, उसी सेकंड में उसकी दिल रुक सकता है। उस कंडीशन का नाम है कमोड कार्डिया। कमोड, यस, कमोड मतलब जैसे हम टॉयलेट में बैठे ना, कमोड कार्डिया इज पुशिंग ड्यूरिंग द poop activity. So we can even die in that situation. But हम इसको नजरअंदाज बहुत कर देते हैं हमारी हेल्थ को, that ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में छोड़ जाती है. So this is my humble request that just open up, talk to somebody, even if it is a very personal thing, get help from the right person and इसकी समस्या का हल जल्दी उठाए. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਰਾਮਿਆ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੁਣੀ? It's not easy. Yes, honestly, even मेरे खुद जो फिजियो फ्रेंड्स हैं, you know, मेरे कम्युनिटी में, वो अभी भी मुझे पूछते हैं तो कैसे कर लेती हो, कैसे किसी के प्राइवेट पार्ट में टेस्ट करते हो. तो पहले आई वांट टू बी फ्रैंक कि पहले मुझे भी हेसिटेशन था. माना हमने ये सारी सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ा हो, लाइक 16 साल में, आई हैव 16 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी, मैंने ये पढ़ा है, पर तब मैंने ध्यान नहीं दिया. मेरी पहली बेबी हुई, मुझे खुद लीक था, मुझे खुद प्रॉब्लम था. अच्छा. और मुझे पता नहीं चला कि यहाँ किससे पूछो. डॉक्टर के पास नहीं, मैं नहीं गई, और डिलीवरी के बाद किसी ने नहीं बोला ये करनी चाहिए. बट जब ये सारी मुझे बॉदर करने लगी कि कुछ तो है जो हम कर सकते हैं, तो मैंने कोर्सेस का गूगल किया एंड आई फाउंड वन कोर्स. बट ट्रस्ट मी, जब मैंने आपने जब जनरल फिजियोथेरेपी की है तो आपको उस वक्त इसका नहीं पता था? नहीं, हमें पता था. अच्छा. फिर भी हमने उसको ध्यान नहीं दिया. अच्छा. So I am not blaming anybody for not giving attention, because जिनको पता था वो भी खुद ध्यान नहीं दे रहे. I know many doctors who have leak and they don't want to come and fix. So ऐसा नहीं कि because आप नहीं जानते, आप नहीं आ रहे हो. No, मैं जानती थी, फिर भी मैंने इस साइड में ध्यान नहीं दिया. बट जब मैंने जान लिया, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए सबको कि आप फिक्स कर सकते हो, ये ठीक हो सकती है, राइट? क्योंकि इतनी बड़ी आई ओपनर थी मेरे लिए
कि ये कितने विमेन सफर कर रहे हैं, किसी किसी का लाइफ बदल गया लीक की वजह से। रोज पैड रखना, रोज काम पे वॉशरूम के लिए भागना। मेनी पीपल हैव इवन हैड मल्टीपल इश्यूज विद सोशल लाइफ। पार्टी में नहीं जा सकते व्हेन दे हैव लीक एंड स्टफ लाइक दैट। आई हैव अ पेशेंट वो जो बोलती है कि जब मैं वॉक पे जाती हूँ मेरे पे पूरा पैंट गीला हो जाता है, बिकॉज आई कैन नॉट गो फॉर वॉक विदाउट लीकिंग। सो वो सारे पेशेंट जब मेरे पास आके बोलते हैं राम्या आज तेरी वजह से मैं एक भी ड्रॉप बूंद नहीं गिरा, मैं अच्छी तरह से वॉक कर पाई, आपके वजह से मैं वापस जॉब पे गई। सो ऑल दीज थिंग्स मेड मी फील बेटर। मुझे लगा कि मैं कुछ कर रही हूँ सोसाइटी के लिए और मैं हमारे वुमेन के लिए। तो दैट गिव्स मी मोर प्लेजर। एंड मैंने ज्यादा कोर्सेज किए थी, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया। मैं करती गई सो दैट आई वांट। मैं ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट भी करती हूँ। जैसे What is that? या सो लैक्टेशन कंसल्टेंट डिफरेंट होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट डिफरेंट होती है। अच्छा। जो हॉस्पिटल में आपको मिलते हैं वो लैक्टेशन कंसल्टेंट है। वो बोलते हैं कि दूध कितना पिलाना चाहिए, बच्चे का वेट कितना गेन हो रहा है, वो सारे लैक्टेशन कंसल्टेंट करते हैं। और वैसे वो भी सिखाते हैं कि कैसे लैच करनी है, कैसे फीड करनी है, सिखाते हैं। यस। बट फिजियोथेरेपिस्ट के एस्पेक्ट में क्या है ना, हम बेबी का भी असेस करते हैं कि उनकी नेक में कोई टाइटनेस है। अच्छा। या उनके नाक टंग में कुछ टाई है, उनके लिप में कुछ टाई है, और ये किस वजह से ये बेबी नहीं ले पा रही है ब्रेस्ट फीडिंग। इफ यू आस्क सम मदर दे विल से वो राइट में लेता है बट लेफ्ट में नहीं ले रहा है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स वो लेफ्ट में टर्न नहीं कर पा रहा है। सो हम बेबी के साइड के प्रॉब्लम भी फिक्स कर सकते हैं और मदर को भी सिखा सकते हैं कि आपको सिर में हाथ नहीं रखना चाहिए, नेक में रखना है, पूरा लैच करना चाहिए, आपको फॉरवर्ड लीन नहीं करना चाहिए, आपको बेबी को अपने ऊपर लगाना चाहिए। सो ऑल दिस एस्पेक्ट जस्ट I know कि as a mother I suffered a lot without having support for breastfeeding. अच्छा। Now मुझे I want to help other women who is suffering with the same thing, and I feel so much happy to help in that. बेबी को देखना, बेबी को हैंडल करना and उसको ठीक से बोलना, and there are so many other factors like posture, the technique, so many things which women doesn't have time during the delivery के टाइम के बाद हॉस्पिटल में जब वो पेन में होते हैं और जल्दी डिस्चार्ज करने में होते हैं, उस टाइम पे वो ज्यादा सीख नहीं पाते। बिल्कुल। सो अभी जब आराम से टाइम मिल गया, घर आ गए, देन दे थिंक कि ओके ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करूं। तो गल ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ E stands for awareness, C stands for communication, next C is for clarity, E is for empowerment, P is positive perspective, T is transformation। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਏ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਯੂ ਫੀਲ ਐਮਪਾਵਰਡ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਮਿਆ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ।